ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام دعا اور دوا میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس پروگرام میں آپ شامل ہو سکتے ہیں، پروگرام میں کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوالوں کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے لکھنؤ کے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مولانا ہارون نظامی صاحب۔ تو آئیے ناظرین، آپ اور ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے لکھنؤ کے اسٹوڈیو میں۔ اور ناظرین بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین، آپ بھی اگر اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو دیے ہوئے نمبرات پر کال کر سکتے ہیں۔ نمبرات لگاتار اسکرول ہو رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میرٹھ سے سر۔ جی سوال پوچھیے۔ سر کیا نام ہے، مولانا صاحب سے پوچھنا تھا خواب کی تعبیر کے بارے میں۔ نہیں، خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں تو ہمارا یہ پروگرام نہیں ہے، دعاؤں سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ مولانا جی نے کیا نام ہے رشتے کے مسئلے کے لیے سورہ طٰہٰ بتائی تھی، تو اس کو کیسے پڑھنا ہے وہ بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ میری کال کاٹے گا، ہمارا کیبل نہیں آ رہا، بس مجھے فون پہ جواب چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے میرٹھ سے۔ جی مولانا صاحب، کیا جواب دینا چاہیں گے، کس طرح سے رہنمائی فرمانا چاہیں گے آپ؟ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العلی العظیم۔ بھائی نے جو سوال کیا ہے بہن کے رشتے کے لیے سورہ طٰہٰ، اس سے پہلے میں نے پڑھنے کو بتایا تھا، تو بہتر یہ ہے کہ جن محترمہ کا رشتہ ہونا ہے تو ان کے بغیر یوز کیے ہوئے روپٹے کے اوپر، جو روپٹہ بغیر دھلا ہو، اس روپٹے کے اوپر سورہ طٰہٰ ایک مرتبہ دم کر دیں اور اس روپٹے کو لپیٹ کے کسی وزن چیز کے نیچے رکھ دیں، اور بعد نماز عشاء 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ بہت جلدی ان کا مناسب رشتہ ملا دے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ آئیے ناظرین، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، اس کے بعد سوال کیجئے۔ السلام علیکم۔ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ محترمہ ٹی وی کی آواز ابھی بھی آ رہی ہے، اب ٹی وی کی آواز آپ نے بند نہیں کری ہے۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، اس کے بعد سوال کیجئے، وقت برباد ہو رہا ہے۔ معذرت چاہوں گا محترمہ، آپ کا سوال نہیں لے سکتا ہوں، ٹی وی کی آواز بڑھا رکھی ہے آپ نے۔ آئیے ناظرین، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ کوٹا راجستھان سے۔ جی سوال پوچھیے۔ ہاں، سوال یہ تھا ہمارا کہ جیسے بچے اسکول کے جو بچے ہیں، جی کوٹا راجستھان سے شیخ ابرار بول رہا ہوں۔ ابرار صاحب، آپ اپنے ٹی وی کی آواز پہلے بند کر دیجئے، اس کے بعد سوال کیجئے۔ اسکول کا جو سوال کا کام کرتے ہیں، اپنا ہوم ورک کرتے ہیں جی، تو اس ٹائم پہ ان کو جو بھی اپنی کتاب کھولتے ہیں، کاپی کھولتے ہیں، تو ان کو کیا پڑھ کے کھولنا چاہیے، اس کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتائیے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب، کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ بھائی کو چاہیے کہ صبح 11 مرتبہ اور شام کو 11 مرتبہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، یہ پوری سورت صبح 11 مرتبہ، شام کو 11 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پلائیں، اور جب وہ کتاب کھولیں پڑھنے کے لیے تو کھولنے سے پہلے ان کو 11 مرتبہ پڑھنا چاہیے، یا علیم یا علیم یا علیم، 11 مرتبہ پڑھ کے کھولیں تو انشاءاللہ جو وہ یاد کریں گے ان کے ذہن میں بیٹھے گا، ان کا من بھی لگے گا۔ جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ آئیے ناظرین، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ کشمیر سے۔
हाँ, सवाल पूछिए। आप ठीक हो? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, खैरियत से हैं? हाँ, सब खैरियत से है। जी, सवाल क्या करना चाहेंगे आप? बच्ची ने जान दिया, छोटी बच्ची है 15 दिन की जी। उसका नाम रखा हमने मदीना। मौलाना साहब से पूछी ना, वो ठीक है नहीं? मदीना नाम रखा है? हाँ हाँ, मदीना रखा नाम। ठीक। या मौलाना साहब को बोले आप ही नाम बता दीजिए कुछ, या ये नाम देखिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर से कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, बेटी का नाम इन्होंने मदीना रखा है, तो नाम ये कैसा रहेगा, या इसके अलावा कोई और नाम हो तो बता दीजिए। नाम जो बहन ने रखा है बहुत अच्छा नाम है। मदीने के माने यानी बरकत वाला शहर, आफ़ियत वाला शहर। और इसके अलावा और भी नाम है कि आफ़िया नाम रख लें, आफ़िया नाम रख लें, ये ठंडा नाम है। अफ़ करने वाला, दरगुज़र करने वाला, मुआफ़ करने वाला। इसी तरीके से और भी नाम आते हैं। बिस्मा नाम आता है, बिस्मा रख लें, आफ़िया रख लें, अनाबिया नाम रख लें। ये 3 नाम मैंने इनको बताए हैं। ये 3 नामों में से कोई नाम भी रख लें, इसके माने भी अच्छे हैं। और ये ठंडे नाम है, अनाबिया, आफ़िया और बिस्मा। और मदीना अगर रखना चाहें तो मदीना भी रख लें, उसमें कोई हर्ज नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं कल दिल्ली से बात कर रही ना, तरन्नु वही बात कर रही हूँ। मेरा कल का सवाल 2 सवाल है, वो समझ नहीं आया था। अब बहुत बड़ा दुआ था, इसीलिए मैं वही बोलना चाह रही हूँ मौलाना साहब से कि जो हमारे शौहर ने ऐसे करते हैं तो उनके लिए। वो जो शौहर आपके जो है वो पहली बीवी के पास जो है बच्चों के पास सामान ज्यादा लेके जाते हैं, उसे तो छुट्टी है तब भी इतना करते हैं, कुछ कहने लायक नहीं। जी नहीं, तो मौलाना साहब ने तो कल सवाल नहीं सुना, तो वही सवाल है आपका ना? तो हाँ वही सवाल है, पर वो दुआ बताए थे ना, तो वो दुआ वो है ना। जी ठीक है, आज फिर से जवाब ले लेते हैं। आप नोट कर लीजिएगा और मोबाइल में आप रिकॉर्ड भी कर लीजिएगा ताकि नहीं। हाँ, और 2 दुआ है, 2 एक बात है जो बच्चों के लिए बोलते हैं, जो नशा के लिए, जो छुड़ाने के लिए। तो 7वां पारा में है ना वो। आप सवाल बता दीजिए, सवाल फिर से बता दीजिए ताकि मौलाना साहब सुन लें। क्या सवाल है आपका? हाँ, बोलते ना मूली पे खाते हैं जो वो बना के 3 हफ्ते में 3 दिन, और कई बार वो पढ़ते हैं दिन हफ्ते में 3 दिन। और अव्वल मोहतरमा आपका सवाल कि आप सवाल दोहराएंगी, फिर मौलाना साहब जवाब दे देंगे। आप सवाल दोहरा दीजिए फिर से। हाँ वही वही है सवाल, वही नशा के लिए जो मौलाना साहब मूली पे बताते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, शौहर जो है इनके नशा करते हैं, किस तरह से आदत छुटाई जाए, और इनका ये कहना है कि इनकी देखभाल सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, और मूल्य पे कोई किसी ने बताया होगा कि दुआ पढ़ के फूकी जाए, वो बात कहाँ तक सही है? बहन को चाहिए कि जब बिस्तर पे लेट जाएं, सोते वक़्त इनको पढ़ना चाहिए 101 मरतबा या रऊफ़ु या रऊफ़ु या जामिउ, या रऊफ़ु या जामिउ 101 मरतबा पढ़ के आंखें बंद करके शौहर का तसव्वुर कर लें। इंशाअल्लाह शौहर जो है इनके तमाम इनके अखराजात पूरे करेगा और इनकी तरफ उनका दिल माइल हो जाएगा। दूसरा अमल मैंने ही बताया था, कुरान मजीद के 7वें सिपारे की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतानी फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। 11 मरतबा ये आयत को पढ़ के मूली के ऊपर दम कर लिया जाए, और उसका अर्क निकाल के भी पिला सकते हैं, उसको सलाद बना के भी खिला सकते हैं, तो नशे की तरफ से इंशाअल्लाह उनको नफरत हो जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ। हाँ, सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल ये है कि मेरी एक बच्ची है, बेटी और बीवी है, और मेरे वालिद साहब है।
لیکن جو میری بیوی ہے وہ اکثر بیمار رہتی ہے. جی تو بچی میں بھی ایک تکلیف ہے. تو میں مولانا صاحب سے یہ درخواست کروں کہ کوئی ایسا دعا بتائے کہ جس سے میرا یہ مشکلات حل ہو. اور تھوڑی بہت پریشانی بھی، ذہن تھوڑا بہت منتشر رہتا ہے. جی تو اس لیے میں نے کال کی کہ کوئی ایسا ٹھیک ہے، دعا بتائے جس سے. بالکل، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ بھائی کو چاہیے کہ صبح یہ 11 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پلائیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ دعا صبح 11 مرتبہ پانی پہ دم کر کے ان کو پلانا چاہیے، اور شام کو 11 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یہ دعا شام کو 11 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پلائیں تو انشاءاللہ اللہ ان کو شفا دے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ علی گڑھ سے بات کر رہا ہوں. جی سوال پوچھیے اپنا. ہاں سوال میرا یہ کہ آپ ایک عمل بتاتے ہیں رات کو ننگے سر کھلے آسمان کے نیچے جی یا مصبی والاسباب. تو ہاں میرا ایک مسئلہ تھا وہ میں نے کرا تھا، تو انشاءاللہ 3-4 دن کے اندر اللہ کا شکر ہے وہ ہو گیا میرا کام. تو اس کو کنٹینیو رکھوں یا بند کر دوں؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب کیا رہنمائی فرمائیں گے، کیا جواب دیں گے آپ ان کے سوال کا؟ اگر بھائی کا کام ہو گیا ہے تو اس عمل کو فی الحال ابھی چھوڑ دیں، اور جب ان کو کوئی دقت پریشانی ہو یا اس عمل کی ضرورت ہو پھر اس کو شروع کر سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہاں میں وہی دلی سے ہی بات کر رہی ہوں نا. میرا وہ جو مسئلہ تھا وہ سمجھ میں نہیں آیا. وہ یہ والا جو نشا والا نا وہ 7ویں پارہ کے پہلے شبد میں ہے نا. جی جی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. یہی ہے مولانا صاحب سے پوچھ لیجئے، میں نے ڈھونڈی ہوں اس میں قرآن میں. ٹھیک ہے، مولانا صاحب نے آپ کو مشورہ دیا تو ہے، آپ اس پر بھی عمل کیجئے تو بہت فائدہ ہوگا. اور جو شوہر والا بتایا وہ میں لکھنا بھول گئی، ایک بار اور ذرا سا نہیں بتا دیجئے مہربانی کر کے. آپ ریکارڈ کیوں نہیں کر رہی؟ ریکارڈ کر لیجئے تو آپ بہت اچھا ہوگا، آپ جو ہے پھر اس کو پڑھ سکتی بار بار. چلیے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب پھر سے ان کا جواب دے دیجئے، نوٹ نہیں کر پائیں گے. جی شوہر کے لیے میں نے بتایا تھا یا رعوف یا جامع، یا رعوف یا جامع، یا رعوف یا جامع. اس کو 101 مرتبہ سونے سے پہلے پڑھنا ہے، آنکھیں بند کر کے شوہر کا تصور کرنا ہے. اور دوسرے جو نشے کے چھڑانے کے لیے میں نے آیت بتائی تھی وہ آیت بہن نے ڈھونڈ لیا ہے، اور جو وہ آیت پڑھ رہی تھی وہی آیت پابندی سے پڑھے، انشاءاللہ شفا ہوگا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. تو امید کرتا ہوں محترمہ آپ نے جو ہے جواب نوٹ کر لیا ہوگا. بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی ہم ناہید بول رہے ہیں مہاراشٹر سے. جی ہمیں 2 سوال پوچھنے کے ہیں. جی سوال پوچھیے. ایک تو یہ کہ کئی سالوں سے سسرال والے بول رہے ہیں کہ پلاٹ دلا کے دیں گے. ہم بہت چھوٹے سے روم میں رہتے، بچیوں کی شادی کرنے کی ہے، تو دلا کر نہیں دے رہے، تو اس کے لیے کوئی دعا بتائیے کہ وہ جلد سے جلد ہمیں دلا کے دے. اور دوسرا یہ کہ گھر بہت جلدی آپ چاہ رہی ہیں کہ گھر آپ کا مل جائے، گھر خریدنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں، تو جگہ دلانے کا بولے تھے ہمارے سسرال والوں نے، وہ دلا نہیں رہے ہیں ہم کو. اس کے لیے دعا بتائیے. اور دوسرا یہ کہ جیسے
جی सूरह जुम्मे की फजलियत बताइए हमें, जुम्मा के दिन पढ़ने की है। और तीसरा ये कि मैं जो हूँ ना तो किसी को भी मुंह पे कुछ भी बोल देती हूँ, मतलब मुंह फट जिसको बोलते हैं ऐसी हूँ, इसलिए सब मुझे मेरा गुस्सा करते हैं। तो मैं सब मेरे साथ अच्छा रहने लगे, इसके लिए भी मुझे दुआ बताइए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महाराष्ट्र से कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? बहन का जो पहला सवाल है कि उनका अपना खुद ज़ाती मकान हो जाए जी इनको चाहिए कि हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ें, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ के अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह खुद इनका ज़ाती मकान हो जाएगा इंशाअल्लाह। दूसरा मसला जो बहन ने पूछा है वो सूरह जुमा की फजीलत के बारे में। सूरह जुमे की फजीलत बहुत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह जुमा जो इंसान जुमे के दिन पढ़ लेता है तो अगले जुमे तक उसको हर बला से, हर मुसीबत से अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करेगा। और सूरह जुमा अगर ये पाबंदी कर लें, रोज़ाना पढ़ा करें तो इनकी तमाम परेशानियां, तमाम दिक्कतें भी अल्लाह ताला दूर कर देगा। लेकिन जुमे के दिन सूरह जुमे को ख़ास तौर से पढ़ना चाहिए, तमाम दिक्कतें, परेशानियां कट जाती हैं। और तीसरा मसला जो बहन का था वो साफ़ आवाज़ नहीं आ पाई इनकी। जी दोनों सवालों के जवाब दे दिए। तीसरा सवाल जो है समझ में नहीं आ रहा था, आवाज़ बहुत कम थी इनकी। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब दोनों सवालों के जवाब देने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? मैं उत्तर प्रदेश से जिला रामपुर से बात कर रहा हूँ। रामपुर से बात कर रहे हैं जी, सवाल पूछिए अपना। सर एक दिन मैं हाजी हज को जा रहे, मेरे आंसू लगा, मैंने सलाम भेजा, मेरे सपने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा आया, उसके बाद में एक बार और आया, उसके बाद में नहीं आ रहा। कौन सा गुनाह हो गया? कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? ख्वाब में आया आपके? हाँ, मैं वहाँ पे बुजुर्ग ने एक मुझे पानी दिया, खुद रोते तो खुशी आ गई थी रोजे पे, तो मुझे पानी दिया, उसके बाद में एक बार और आया सपना, फिर दोबारा मुझसे बात नहीं करी बुजुर्ग। भाई सपनों की आप बात ना कीजिए, कोई दुआओं से मुतालिक कोई सवाल है आपका? मैं चाहता हूँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा दोबारा दिखाई दे, मैं कहीं ना कहीं मुझसे गुनाह हुआ है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? इन्होंने अपने ख्वाब में जो है मदीने मुनव्वरा को देखा था, लेकिन अब नहीं दिखाई दे रहा है। कोई अगर दुआ हो तो बता दीजिए ताकि इनको फिर से दिखाई दे। भाई को चाहिए कि सबसे अव्वल जैसा कि खुद ही बता रहे हैं मुझसे कौन सा गुनाह हो गया, तो अपने आप को गुनाहों से जो है साफ पाक रखें, गुनाहों से अपने आप को बचाएं। और दूसरे की इनको कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। अगर ये चाहते हैं मदीने शरीफ की ज़ियारत हो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो, तो इनको कसरत से जितना हो सके, इनसे कोई तादाद नहीं उसकी है, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें, इंशाअल्लाह फिर दोबारा इनके ख्वाब में मदीना दिखाई देगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं बलकल फरीदाबाद से। जी सवाल पूछिए अपना। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। जी सवाल पूछिए। मेरे चेहरे पर तिल है, तो उसकी कोई दुआ बता दो। क्या है? चेहरे पर तिल। जी सवाल मौलाना साहब आपके समझ में आया? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इनके चेहरे पे तिल हैं, तो वो तिल गायब हो जाएं, उसके लिए कोई दुआ हो तो बता दीजिए। कुरान मजीद के छठे सिपारे में एक छोटी सी आयत है, व अर्जुलकुम इलल काबैन, व अर्जुलकुम इलल काबैन, व अर्जुलकुम इलल काबैन। इसको सुबह और शाम 11-11 मरतबा पढ़ के और नारियल के तेल के ऊपर दम करके वहीं पे लगाएं, तो इंशाअल्लाह तिल इनका ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں جونپور ڈسٹرکٹ سے بات. جی سوال پوچھیے اپنا. سوال پوچھیے اپنا. جی ٹی وی پہ نہ سنیے، آپ ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے، موبائل پہ اپنا سوال پوچھیے. ارے ہم دور ہیں ٹی وی سے بھائی. جی سوال پوچھیے اپنا. کوئی دوا بتائیے. جی شوگر ہے اس کے لیے کوئی دوا بتائیے. سوال نہیں سمجھ میں آیا آپ. شوگر ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ ان کو شوگر کی شکایت ہے. بھائی کو چاہیے کہ صبح جو ہے 40 مرتبہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور بسم اللہ نہ پڑھیں. اس کو 40 مرتبہ صبح پانی پہ دم کر کے پئیں. اور شام کو ان کو چاہیے 7 مرتبہ الحمد شریف، 7 مرتبہ الحمد شریف اور 7 مرتبہ درود شریف، یہ پانی پہ دم کر کے پئیں تو انشاءاللہ جو ہے شوگر کنٹرول ہو جائے گا. اللہ ان کو شفا دے گا. آمین. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جموں کشمیر سے صاحب کر رہا ہوں. بات میں پوچھنا چاہتا ہوں یا قیوم بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. یہ دو جو آیتیں ہیں یہ کس موقع پر پڑھنی چاہیے؟ اس کے لیے مجھے مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے. جی گھر میں خیر و برکت، کاروبار میں خیر و برکت. ٹھیک. جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ پہلی آیت جو بھائی نے پڑھی ہے وہ تو حفاظت کے لیے ہے، دشمن سے حفاظت کے لیے ہے اور ہر بلا پریشانی سے حفاظت کے لیے ہے. اور دوسری دعا جو بھائی نے پڑھی ہے وہ روزی کے لیے ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ دعا روزی کے لیے ہے، اس کو کثرت سے پڑھیں تو روزی میں برکت ہوگی. جو پہلی دعا بھائی نے پڑھی تھی وہ ہر بلا سے، ہر پریشانی سے، دشمن سے حفاظت کی ہے. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں علی گڑھ سے ریحانہ بول رہی ہوں. جی ریحانہ صاحبہ سوال پوچھیے اپنا. جی میں یہ پوچھ رہی ہوں، انہوں نے ایک لڑکیوں کے لیے روپٹے پہ پڑھنے کا کوئی طریقہ بتایا تھا. میں اس وقت کچن میں تھی، میں سن ہی نہیں پائی. تو وہ پھر سے بتا دیں کہ روپٹے پہ پڑھنا کیا ہے، اور روپٹے کو انہوں نے کہا تھا کہ دبا کے رکھنا ہے. جی تو وہ مجھے پلیز پھر سے بتا دیجیے. میری لڑکیاں تو نہیں ہیں لیکن میرے پاس بہت لوگ آتے ہیں، اتنے پریشان رہتے ہیں اپنی لڑکیوں کے رشتے کے لیے، تو میں انہیں بتانا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے نوٹ کر لیجئے گا. موبائل کی ریکارڈنگ آپشن جو ہے اب میں جائیے، اس کے بعد ریکارڈ کر لیجئے گا جواب، اور انشاءاللہ پھر آپ جو ہے دوسروں کی رہنمائی کر سکتی ہے. جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ جس بیٹی کا رشتہ ہونا ہے اس کا روپٹہ بغیر دھلا ہو، بغیر دھلا ہوا روپٹہ اس کے اوپر 1 مرتبہ سورہ طٰہٰ دم کریں. سورہ طٰہٰ 16ویں سپارے میں جہاں پہ 16واں سپارہ نصف ہوتا ہے، آدھا ہوتا ہے، وہاں پہ سورہ طٰہٰ شروع ہے. 1 مرتبہ پڑھیں روپٹے کے اوپر دم کر کے. روپٹے کو کسی وزن چیز کے نیچے، بکسے کے نیچے، الماری کے نیچے، بیڈ کے نیچے کہیں بھی اس کو دبا دیں. اور دوسرے بعد نماز عشاء اس بچی کو پڑھنا چاہیے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. 41 مرتبہ بعد نماز عشاء پڑھ کر دعا کریں تو انشاءاللہ بہت جلدی ان کا مناسب رشتہ ملے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. کچھ اور کالرز کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کے کیا سوالات ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں بہار سے بات کر رہا ہوں. جی سوال پوچھیے اپنا. جی میرا سوال یہ تھا کہ میرے گھر میں بہت ساری پریشانی ہے اور میری امی کی طبیعت برابر خراب رہتی ہے، تو اس کے بارے میں کچھ دعا.
अम्मी का कुछ इलाज चल रहा है? जी जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, दोनों सवालों के क्या जवाबात देना चाहेंगे आप? भाई को चाहिए कि सुबह 41 मरतबा पढ़ें अन्नी मस्सनी ज़ुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन, अन्नी मस्सनी ज़ुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। इसको 40 मरतबा सुबह पानी पे दम करके पिएं और शाम को 40 मरतबा ये दुआ पढ़ लें, अज़हिबल बअस रब्बन नाश वशफ़ी अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाउन ला युगादिरु सक़मा। 40 मरतबा इसको शाम को पानी पे दम करके पिएँ तो इंशाअल्लाह अल्लाह इनकी वालदा को शिफा देगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम बिहार से बोल रहे हैं। सवाल पूछिए। तबीयत बहुत खराब रहता है जी। तो दवा इलाज कराते हैं, कुछ होता ही नहीं, धड़कन तो रहता है। किस तरह की तबीयत खराब है, क्या शिकायत है आपको? बीपी भी है, शुगर भी है, थायराइड भी है, कितो दवा खाते हैं वो नहीं करता है सही। दिल घबराते रहता है हरदम, कोई मतलब ही नहीं रहता। और एक बात है, हमारी लड़की का कहीं भी रिश्ता लगाते हैं तो उसमें कुछ न कोई खोज कर देता है, ये है वह है। जी ठीक, इसके लिए कुछ दुआ बताइए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बिहार से कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, किस तरह से इनकी रहनुमाई फरमाएंगे? बहन को चाहिए कि हर नमाज के बाद 21 मरतबा पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी बदनी। इसको 21 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ लिया करें। जो इनके बदन में तकलीफ़ है या जो इनको बीमारी, अल्लाह उसमें शिफा देगा। और दूसरा बहन ने जो मसला बताया, गालिबन वो रिश्तों के बारे में बताया है कि रिश्ते लगाते हैं और रिश्ते रुक नहीं पाते हैं, तो उसके लिए बहन को चाहिए कि सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद को शक्कर के ऊपर दम कर लें और जब रिश्ते वाले आएँ उसी शक्कर से चाय वगैरह बनाएं तो अल्लाह ताला इनके रिश्ते को जल्दी मिला देगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अब्दुल सैयद करीम छिंदवाड़े से बोल रहा हूँ। जी सवाल पूछिए। जी, नेक और सालीम औलाद पैदा हो इसके लिए दुआ बताएं और उसे कोई तकलीफ ना हो और उनकी जो बीमारी है उससे भी उन्हें आराम मिले। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, शुक्रिया, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? इनको चाहिए कि ये कसरत से ये दुआ पढ़ें, रब्बी हबली मिनस्सालिहीन और रब्बी हबली मिनस्सालिहीन और रब्बी हबली मिनस्सालिहीन। कसरत से ये दुआ पढ़ें, अल्लाह ताला इनको जो है वो नेक सालेह औलाद अता करेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जम्मू एंड कश्मीर से बात कर रहा हूँ। जी जम्मू कश्मीर से। हाँ, सवाल पूछिए अपना। जी सर, अभी मेरा ये जॉब नहीं लग रहा है, उसके रिलेटेड हर मौलाना साहब कुछ दें। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, इनकी नौकरी नहीं लग रही है, क्या जवाब देना चाहेंगे? जी, भाई को चाहिए असर की नमाज के बाद एक मरतबा पढ़ लिया करें सूरह फतेह। असर की नमाज के बाद एक बार पढ़ लिया करें सूरह फतेह और हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ लिया करें अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। हर नमाज के बाद 11 बार ये पढ़ लिया करें, अल्लाह ताला इनकी जॉब को लगाएगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम महाराष्ट्र से यास्मीन बोल रहे हैं। जी सवाल पूछिए यास्मीन साहिबा। हाँ, हम ये बोल के मौलाना साहब ने जो मूली पे पढ़ने को कहा था, तो वो नशे की आदत को कौन से नशे के लिए कहा था? नशे की आदत को छुड़ाने के लिए
बताया था। हाँ, मूली पे दम करने के लिए बताए थे। तो नशा मतलब कौन सा नशे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो? कोई सा भी नशा हो, जैसे बहुत से लोग जो हैं जो नशे के आदी हो जाते हैं, शराब खास करके शराब के, उसको छुटाने के लिए बोला था। आपको क्या शिकायत है, आपके यहाँ क्या परेशानी है, वो भी बता दीजिए। नहीं, ये शराब के अलावा दूसरा कोई नशा करते बच्चे तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते क्या? ठीक है, मौलाना साहब से जवाब ले लेंगे कि अगर शराब के अलावा भी कोई नशा है तो उसके लिए क्या जवाब होगा। जी मौलाना साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? नहीं, नशे की जैसी भी आदत हो, चाहे वो गुटखा खा रहे हो, मसाला खा रहे हो, या और बच्चे कुछ नशे की चीज़ें लेने लगते हैं या शराब पीने लगते हैं, कैसा भी नशा हो, ये दुआ पढ़े, इंशाल्लाह सारे नशे से उनको नफ़रत पैदा होगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बेंगलोर से। सवाल पूछिए अपना। जी सवाल क्या है आपका? सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ। हेलो, आपकी आवाज आ रही, सवाल कीजिए। माजरत चाहूंगा भाई, आपका सवाल नहीं ले सकता हूं। आइए नाजरीन, एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं नासिर बोल रहा हूँ जनाब, बुलवाने से। जी सवाल पूछिए। मेरे दो सवाल है जनाब। जी। मेरी बीवी की जो आंखें की पप्पी है वो हमेशा ऐसी फड़फड़ करती है दोनों। बीवी की क्या है? आंखों की जो पपड़ी आती है, पप्पन। जी हाँ, वो फड़फड़ करती है। ठीक, और कोई सवाल? और मेरा एक सवाल और दूसरा ये है कि मेरे नाम के मायने बताओ नासिर के। नासिर के मायने? ठीक, आपकी उम्र क्या है नासिर साहब? मेरी उम्र 46 साल। 46 साल? 46। 46? हाँ 46। जी 46 साल है। ठीक है, आपके नाम के मायने भी पूछ लेंगे और आपकी जो शरीक हयात को शिकायत है आंखों की, उसके बारे में सवाल कर लेंगे। जी मौलाना साहब, दोनों सवालों के क्या जवाब देना चाहेंगे? इनकी जो अहलिया हैं, उनके आँख में जो तकलीफ़ है, उनको चाहिए कि ये अगर वो काजल लगाती हों, सुरमा लगाती हों, तो उसके ऊपर ये दुआ पढ़ लें, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, उसी पे दम कर लें और उसी को लगाएं तो जो आँख में तकलीफ़ है अल्लाह ताला इनको शिफा देगा। और दूसरा जो भाई ने मसला पूछा वो नाम के बारे में, तकरीबन नासिर के बारे में उन्होंने पूछा है गालिबन। जी नासिर। तो नासिर के माने आएंगे मददगार, नासिर के माने आएंगे मददगार। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नासिर साहब, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके दोनों सवालों के जवाबात मिल गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम लखनऊ से बात कर रहे हैं भैया। जी सवाल। मौलाना साहब से मेरा ये सवाल था कि मौलाना साहब ने मुझे आज के 15 दिन पहले फोन किया था, तो बताया था बेटा मेरा गुटखा खाता बहुत और सिगरेट पीता है, तो बताए थे कि 11 दिन पानी पर दम करके या सलूनका इन्नमल खमरु वल मैसिर मतलब पढ़ के पूरा देना। हम तो उसको भैया 4-5 बार दिन में देते थे, लेकिन थोड़ा सा कम हुआ है, मतलब अभी छूटा नहीं, आज 11 दिन हो जाएगा। तो मौलाना साहब से पूछना था कि मौलाना साहब और दें, पढ़ के और दें कि मतलब बस आज ही 11 दिन तक पढ़ के देना है, यही पूछना था। ठीक है, मौलाना साहब ने 11 दिन का बताया था ना? जी जी, वही पूछना है कि अभी छूटा नहीं है पूरी तरह, थोड़ा सा हो गया है, लेकिन ये है कि और दें पढ़ के कि मतलब उतना ही 11 दिन पढ़ना है बस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए लखनऊ से। जी मौलाना साहब, आपने जो मशवरा दिया था उस पर अमल किया है इन्होंने, फायदा हुआ, लेकिन पूरी तरह से फायदा नहीं हुआ। 11 दिन का बताया था, आगे इनको वजीफा आगे कंटिन्यू करना है। भाई जैसा मर्ज होता है वैसा ही इलाज होता है। डॉक्टर के यहाँ एक बार जाती हैं, 2 बार जाती हैं, 3 बार जाती हैं, कई मरतबा डॉक्टरों के चक्कर लगते हैं, तब जाके जो बीमारी में शिफा हो पाती है।
ایسے دعاؤں کا بھی معاملہ ہے کہ اگر وہ 11 دن میں نہیں ہو پایا تو پھر یہ 11 دن اور کر لیں، اگر اس کے بعد بھی نہ ہو پائے تو 11 دن اور کر لیں، جب تک کہ وہ چیز ختم نہ ہو جائے یہ عمل کو جاری و ساری رکھ سکتی. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے، اس کے بعد اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم نادل سے. ہاں سوال پوچھیے اپنا. نادل مہاراشٹر. جی سوال پوچھیے. طبیعت خراب ہوتی، چکر آتی، بی پی بڑھتا رہتا. چکر آتے ہیں؟ ہاں چکر آتی، بی پی بڑھتا گھڑی گھڑی. بی پی کی بھی شکایت ہے؟ ہاں. ٹھیک ہے، کب سے یہ شکایت بی پی کی؟ یہ سال ہوتا. اب دیکھو کوئی دوا نہیں لے رہی ہیں آپ؟ دوا کھا رہے ہیں، کم نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، اب مولانا صاحب جو مشورہ دیں اس پر عمل کریے گا تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے نادر سے. جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ بہن کے اگر بی پی بڑھ جاتا ہے اور بی پی زیادہ ہائی ہو جاتا ہے تو قرآن مجید کی یہ دعا پڑھیں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. بی پی کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ دعا ہے یہ. اگر اس کو 41 مرتبہ پانی پہ دم کر کے صبح شام پی لیا جائے تو انشاءاللہ بی پی کی تکلیف سے اللہ ان کو نجات دے دے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ حمید بول رہے ہیں. شہناز بیگم. شہناز بیگم جی سوال پوچھیے. لڑکا ایک 16-17 سال کا لڑکا ہے، اس کے داڑھی میں سفید بال ہے اتاد جی، تو اس کی دعا بتا دیجیے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اپنے شوہر کا نام لے کے بلائے تو وہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ بس ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. بیٹے کی عمر کیا ہے وہ بھی بتا دیجیے. چلیے جی مولانا صاحب دونوں سوالوں کے کیا جوابات دینا چاہیں گے؟ جی بہن نے جو بتایا کہ بال سفید ہو جاتے ہیں تو سب سے بہتر تو یہی ہے کہ سفیدی اللہ کو پسند ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے. جب کسی انسان کا ایک بال سفید ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ جھڑ جاتا ہے، اس کی ایک نیکی لکھی جاتی ہے. خیر اگر یہ چاہتی ہیں کہ بال سفید نہ ہوں اور بال کالے رہیں تو ان کو چاہیے کہ جو ہے وہ کثرت سے پڑھا کریں یا باطنو یا باطنو یا باطنو. کبھی اس کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بھی پی لیا کریں، کثرت سے ان کو بتا دیں یا باطنو پڑھیں تو انشاءاللہ جو ہے ان کے بال دیر تک کالے رہیں گے. جی اور دوسرا مسئلہ جو بہن نے پوچھا ہے کہ شوہر کا نام لے کے بلا سکتے ہیں کہ نہیں بلا سکتے ہیں. بعض لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ شوہر کا نام لینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. شوہر کا نام لے کے پکار سکتے ہیں اور نام لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یاد رکھیں یہ ادب کے خلاف ہے. یہ چیز ادب کے خلاف ہے. آپ کے شوہر ہیں تو آپ بہتر ہے کہ ان کا نام نہ لے کے بچوں کے ابو کہہ سکتے ہیں یا کوئی ان کا نام اور آپ لے سکتے ہیں، لیکن اگر نام لے کے پکار رہی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لے سکتی ہیں نام، لیکن ادب کے خلاف ہے، بہتر نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بریلی سے بول رہی ہوں. جی سوال پوچھیے. ہمارے شوہر کے جو ہے میرا جو ہے اچھا خاصی صاف ان کے چہرے پہ کالا سا نشان پڑ گیا ہے. کہاں پہ نشان پڑ گیا؟ چہرے پہ نا کالا نشان پڑ گیا ہے. چہرے پہ؟ جی جی چہرے پہ نا کالا سا نشان پڑ گیا ہے. وہ کچھ بتائیے اس کے لیے. کیوں پڑا یہ نہیں پتا آپ کو؟ نہیں جیسے اپنے آپ ہی پڑ گیا ہے، ویسے تھا سفید سفید سب وہ کالا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے
अच्छा दिख रहा है एकदम। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे? इनके शौहर के चेहरे पे काला निशान पड़ गया है, वो ये चाहती हैं कि वो निशान ख़त्म हो जाए, गायब हो जाए, उसके लिए कोई दुआ हो या वजीफ़ा हो, बता दीजिए। कुरान मजीद की ये दुआ है, इसको 7 मरतबा शहादत की उंगली पे दम करें और उस उंगली को जो है थोड़ी देर वहीं पे जो है फेरते रहें, लगाते रहें। मुसल्लमतुल्ला शियत फीहा, मुसल्लमतुल्ला शियत फीहा, मुसल्लमतुल्ला शियत फीहा। इसको 7 मरतबा शहादत की उंगली पे दम करके वहाँ पे थोड़ा रखे रहें। कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह वो निशान ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं आंध्रा से बात कर रही हूँ। हमारे 2 सवाल हैं। जी। पहला सवाल ऐसा खर्च बहुत है। आपका शौहर जो है? हमारे शौहर के घर वाले हम नाश्ते देने के तकरार कर रही हैं, उसके लिए क्या वजीफा पढ़ना है, जरा मौलाना साहब से कुछ बोलो। और दूसरा सवाल क्या है आपका? फर्ज बहुत है जी, फर्जदारी में बहुत होगी हमें। हमारे शौहर के घर वाले नाश्ते देती घर को देगी है, उसके लिए क्या दुआ है कि रहती मौलाना साहब बोल डाले। ठीक जी मौलाना साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे? बहन का पहला सवाल समझ में नहीं आया। वो कर्ज के सिलसिले में पूछना चाह रही हैं, इनके शौहर जो है कर्जदार हो चुके हैं, उसके लिए कोई दुआ हो तो बता दीजिए। कर्ज के लिए इनको 2 चीज़ें मैं बता रहा हूँ। सबसे अव्वल तो ये, जब ये खाना खाने से पहले दोनों हाथ इनको गट्टों तक धुलना चाहिए जी। दोनों हाथ इनको गट्टों तक धुलना चाहिए। फिर उसको किसी तावल में या किसी जो है कपड़े में पोंछना नहीं चाहिए, ना ही उनको झिटकना चाहिए, बल्कि उनको इस तरीके से निचोड़ना चाहिए और दिल में ये नियत करें कि अल्लाह, जैसे मेरा ये पानी नुचड़ रहा है, सारा मेरा कर्जा आप इसी तरीके से निचोड़ दीजिए। ये अमल इनको जारी और सारी रखना है। और दूसरा अमल ये कि हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफदलिका अम्मन सिवाक, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफदलिका अम्मन सिवाक। इसको हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ के अल्लाह से दुआ करे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी अल्लाह ताला इनके कर्जे को उतार देगा। जी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कर्नाटक से बात कर रहे हैं। सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, सवाल पूछिए अपना। हमें कर्नाटक से बात कर रहे हैं। जी, सवाल हमारी बेटी है, बेटी का नाम मालन है जी। 17 बरस की है जी। उसके पैर को जरा वो दाग है, नहीं कम हो रहा, बहुत हमें इलाज करे, बहुत दवा करे, सब करे, वो बहुत बचपन से 5 साल की थी, जैसी है। तो क्या करे जो हमें, जब तुम्हें चने का बोले थे उसके मुँह को से उतार को वो तुम्हें बोले थे, तो हम ना वो करना क्या, जरा बताए तो। कोई इलाज आपने करवाया, डॉक्टर से मशवरा किया उस सिलसिले में? हाँ, बहुत दवाखाने दिखा, बहुत डॉक्टर से इलाज करे, लेकिन जा रहा नहीं हो, लोग बताए जाता नहीं हो। ऐसा तो दाग उतना ही है, बढ़ रहा है? पता चाहे सोरा कितना दाग है, पता चाहे सीधे पैर को है। नहीं, दाग बढ़ रहा है या उतना ही है जितना पहले था 5 साल की जब उसकी उम्र थी? उतना है, अभी तक उतना है। वो क्या बढ़िया नहीं, क्या नहीं, वो तुम्हें चने का जरा उसके मुंह को से उतारने का बोले थे, वो हमें करे से चलता क्या, तो कम होता है क्या कर को। एक दुआ कुछ नहीं खाए तुम्हारा से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नाटका से कॉल करने के लिए। मौलाना साहब से जवाब ले लेते हैं। जी मौलाना साहब, किस तरह से रहनुमाई फरमाएंगे आप इनकी बेटी के लिए? अभी इससे पहले मैंने बताया था कि जो दाग हो जाते हैं या दाद हो जाते हैं, जो निशान या पार्ट्स पड़ जाते हैं, तो मुसल्लमतुल्ला शियत फीहा, कुरान मजीद के पहले सिपारे की आयत है, मुसल्लमतुल्ला शियत फीहा। इसको अगर नारियल के तेल के ऊपर दम करके भी लगा सकते हैं, इसको पानी पे दम करके पी भी सकते हैं, और रोज़ाना 7 मरतबा मुसल्लमतुल्ला शियत फीहा, शहादत की उंगली पे वो दम करके ख़ुद वहाँ पे थोड़ी देर रखे रहें, तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये इनका पार्ट्स ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? दिल्ली से। हाँ, सवाल पूछिए अपना। मेरा बेटा है, वो पढ़ाई में दिल नहीं लगाता है, और मेरे शोहर
बिल्कुल वो भी नहीं, किसी कहने को नहीं सुनते। और आवाज थोड़ी सी बुलंद करके बोलिए, थोड़ी सी आवाज तेज करके बोलिए। हेलो, हाँ आवाज आ रही लेकिन हल्की आ रही है। आपका बेटा जो है पढ़ाई में दिल नहीं लगाता है? हाँ बिल्कुल कहना नहीं सुनता है, और क्या कहते हैं वो जिद्दी बहुत है, दिमाग मतलब ऊंची आवाज से बात करता है, कुछ बोलो तो मतलब चिल्ला कर बात करता है। और शोहर का काम वाम भी मतलब ऐसी है, और मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। मुझे कोई छोटी सी ऐसी दुआ बता दीजिए जो मैं घर में पढ़ सकूँ। ठीक, बच्चे के लिए भी और शोहर के लिए भी। उसकी पढ़ाई में तो बिल्कुल ही दिल नहीं है जी। और मेरी एक बेटी है, उसके रिश्ते के लिए बता दीजिए। मैंने वैसे रिश्ते की बात कर रखी है, लेकिन रिश्ते आते हैं कुछ बोलते नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए दिल्ली से। जी मौलाना साहब, इनके तीनों सवालों के क्या जवाब देना चाहेंगे आप? जी, बहन के जो बेटा है वो इनसे गुस्सा गर्मी करता है, तेज़ आवाज़ से बोलता है, तो उनको चाहिए कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और या रऊफ़, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 41 मरतबा, या रऊफ़ 41 मरतबा पानी पे दम करके पिलाएं तो इंशाल्लाह बेटा इनका फर्मा बरदार हो जाएगा। और दूसरा जो मसला बहन ने बताया कि इनके शौहर की रोज़ी का मामला है जी। और इन्होंने मुख्तसर सा एक अमल पूछा है, क्योंकि पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं है जी हाँ। तो इनको चाहिए या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़ु, या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़ु, ये हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ लिया करें जी। और तीसरा मसला जो बहन का है वो इनकी बेटी के रिश्ते के बारे में है। तो जब ये बिस्तर के ऊपर लेट जाएं तो एक तस्बीह पढ़ें, या लतीफ़ु या जामिउ, या लतीफ़ु या जामिउ, या लतीफ़ु या जामिउ 101 बार पढ़ के अल्लाह से दिली दिल में दुआ करें, इंशाल्लाह मुनासिब रिश्ता मिलेगा इनको। जी इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और मोहतरमा, उम्मीद करता हूँ कि आपने तीनों सवालों के जवाब नोट कर लिए होंगे। इस पर अगर अमल करेंगी तो इंशाल्लाह आपके घर में खैर बरकत भी होगी, बेटी का रिश्ता भी हो जाएगा और आपका बेटा आपका फर्मा बरदार भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली से कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन ये कॉल ड्रॉप हो गया। आइए नाजरीन, एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा, अस्सलाम वालेकुम। जी कहाँ से बात कर रही हैं? टीवी की आवाज़ आपने बढ़ा रखी है, टीवी की आवाज़ कम कर दीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं बरेली से बोल रही हूँ। जी सवाल कीजिए। जी मेरे सर में जो है रोज दर्द हो जाता है, रोज सर में मेरे दर्द होता है। जी सर में दर्द रहता है? हाँ सर में दर्द, और सुबह में जो है अगर नमाज के लिए उठते हैं तो इतनी छींकें आती है, इतनी छींकें आती है तो जुकाम हो जाता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, दोनों सवालों के क्या जवाब देना चाहेंगे आप? बहन अगर सर में कोई तेल इस्तेमाल करती हैं तो उस तेल के ऊपर ये दम कर लें, ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़फ़ून, ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़फ़ून, ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़फ़ून। ये 41 मरतबा जो ये तेल सर में इस्तेमाल करती हैं उस पर दम कर लें, वही तेल लगाएं तो इंशाल्लाह सर का दर्द इनका ख़त्म हो जाएगा। जी, और फजर की नमाज के वक्त जब उठती हैं, वुज़ू करती हैं तो इनको छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं। छींकें ना आए उसके लिए भी कोई मशवरा हो तो बता दीजिए। जब ये सोकर उठें और वज़ू बनाने से पहले दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा अरिहनी राहियतल जन्नह, अल्लाहुम्मा अरिहनी राहियतल जन्नह, अल्लाहुम्मा अरिहनी राहियतल जन्नह। इसको जो है 7 मरतबा पढ़ लें तो इंशाल्लाह छींकें नहीं आएंगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना हारून साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम दुआ और दवा। मुझे उम्मीद है प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। किसी वजह से अगर आपका कॉल नहीं लग पाया है तो आप कल सुबह 7:30 बजे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।